اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ آداب دوستو، میں ہوں یم واجد، آپ کے لیے لایا ہوں پروگرام آدھی حقیقت تھوڑا فسانہ۔ عنوان پر آپ مت جائیے، کیونکہ کبھی کبھی یہی پروگرام پوری حقیقت بن جاتا ہے، پھر افسانے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ ان دنوں دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک بلڈوزر کی زد میں ہے۔ دیش میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات سیاسی ضرورت بن گئے ہیں، اس لیے برسر اقتدار جماعت کو جب بھی اس کی حاجت ہوتی ہے یہ کروا دیے جاتے ہیں، بلا وجہ فسادات نہیں ہوتے۔ دلی فساد کے علاوہ رام نومی کا سب سے بڑا فساد کھرگون مدھیہ پردیش میں ہوا۔ خیر، یہ سب تو ہمارے دیش میں ہوتا ہی رہتا ہے، بلکہ ہوتا ہی رہے گا جب تک یہاں کے سیاسی قائدین مذہب سے اوپر اٹھ کر کام نہیں کریں گے، تب تک ہمیں یہ سب تو دیکھنا ہی ہے۔ بی جے پی نے تمام حدوں کو پھلانگ کر ملک کے سیاسی امن پر بلڈوزر کو ابھارا ہے، جسے جیت کے لیے انتخابی کھلونا بنایا گیا۔ اب یہاں بچے کھلونوں سے کھیلتے ضرور ہیں اور اس کھیل میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ بھکتوں نے کیا اور اب بھگت رہے ہیں۔ پیٹرول ڈلوانے کے لیے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، بھینڈی کھانے کا موڈ ہے، لیکن یہ قوت خرید سے باہر ہے۔ بھلا ہو وزیر اعلیٰ KCR کا، جو اناپورنا اسکیم کے تحت 5 روپے میں پیٹ بھر کھانا غریبوں کو کھلا رہے ہیں۔ فی الحال تلنگانہ والے مزے میں ہیں۔ دیش میں بلڈوزر کا کھیل جاری ہے۔ ماں باپ خوشی سے انتخابی میدانوں میں اپنے بچوں کے لیے بلڈوزر خریدتے اور انہیں دیتے دکھائی دیے تھے۔ بعض نے تو حد کر دی تھی کہ اپنے بچوں کا حلیہ ہی بلڈوزر کی طرح بنا دیا تھا، خوشی منا رہے تھے۔ اب یہ خوشی کس لیے منائی جا رہی تھی یا منوانے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا، پتہ نہیں۔ جیسے ہی UP میں BJP نے اکثریت حاصل کر لی، یہاں سبھی نے بلڈوزر کا کھیل زوروں سے شروع کر دیا، جس کا شور آج بھی جاری ہے۔ جب میری ملاقات میرے ایک عزیز دوست راج کمار سے ہوئی تو میں نے یوں ہی اس سے دریافت کیا، بتاؤ یار کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کیا بتاؤں یار، یہاں تو سلا زندگی پر بلڈوزر چل گیا ہے۔ مہنگائی نے تو کمر توڑ دی ہے، بچے بے روزگار ہو کر گھروں میں محروس ہیں اور دن رات فون پر لگے ہیں، ایسے میں زندگی عذاب لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، پچھلے انتخابات یاد ہے نا راج کمار تجھے؟ اتنا سننا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں پھک ہو گئیں۔ اس نے دھیمے انداز میں کہا، یار غلطی ہو گئی، ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے گھروں میں خوشیوں کے کنول کھلیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم خود کیچڑ میں پھنسے جا رہے ہیں۔ پھر وہ گویا ہوا، اب میں رکوں گا نہیں بلکہ کہوں گا، حکومت سے سوال کروں گا، غریبوں کے مسائل پر آواز اٹھاؤں گا، غریبوں کے گھروں سے بلڈوزر کو ہٹانا ہوگا۔ اب اس کا رخ ایندھن اور بے روزگاری کی جانب کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بڑھتی بے روزگاری اور افراط زر پر اس بلڈوزر کو چلایا جا سکے۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ بلڈوزر نام کی مشین پر مودی جی خاموش ہیں، عدلیہ بھی اس پر چپ ہے، کیونکہ عدالتیں بلڈوزر کے افریت کو بوتل میں بند کرنے سے قاصر ہیں۔ اب یہ عدلیہ کے موت و زیست کا سوال بن گیا ہے کہ ایسی حکومت پر بلڈوزر چلایا جائے، ورنہ ناکامی کی صورت میں بعید نہیں کہ یہ بلڈوزر پلٹ کر انہی کو رون دے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تاہم اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے 5 ریاستوں میں ہو چکے انتخابات میں کتنی بڑی غلطی کر ڈالی۔ کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ کمل کھلانے کے بعد کوئی خوشی ان سے بچھڑ گئی ہے۔ انہیں محسوس ہونے لگا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں تھوڑا دوڑنے کی کوشش کی، لیکن تھک گئے، شاید ہار گئے یا پھر ڈر گئے، جھک گئے ہیں، دیکھنے میں افسردہ، نا امید، مایوس اور ٹوٹ سے گئے ہیں۔ اب یہاں میں بھٹکے ہوئے، ڈرے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ انتخابات کا کیا ہے، وہ تو آتے ہی رہیں گے، لیکن ہمیں ہارنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے ہمت نہیں کی
तो देश की गंगा जमनी तहजीब का क्या होगा। अब आप बुलडोजर को फरामोश करते हुए अपने लिए ट्रेडमिल खरीद लो या फिर मुस्तार ही ले लो, ताकि जब तुम उस पर दौड़ोगे तो सांसों का तसलसल कायम रहेगा, रट्टे पट्टे जानदार होंगे। आने वाले इलेक्शन में जब आप सेहतमंद होंगे तो फिर दूसरे फूल खिला लेना। अगर आप यहाँ कहेंगे कि ट्रेडमिल होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमिल उन मशीनों में से एक है जिस पर चल और दौड़कर वर्जिश की जाती है। ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज और स्विमिंग पूल में तैराकी करते हुए इंसान खुद को सेहतमंद रख सकता है। अब यहां आप खुद देख सकते हैं कि इंसान आजकल स्मार्ट बनने का बहुत कम सोचते हैं। यकीन नहीं आ रहा हो तो पिछले इलेक्शन देख लीजिए। आराम करने को लोग अपना पैदाइशी हक समझने लगे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां इंसान के दरवाजे तलाश करती फिर रही हैं। ऐसे में आप शायद यकीन करें कि बेपनाह तेल की दौलत से मालामाल दुबई के अमीर लोग अब अपने कुत्तों को स्मार्ट बनाने के लिए ट्रेडमिल का सहारा लेने लगे हैं। दुबई के एक हेल्थ क्लिनिक में पालतू कुत्तों को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम रोजाना करवाया जाता है। मोटापे का शिकार कुत्ते यहां स्मार्ट होने की कोशिशों में मसरूफ हैं। बाकायदा माहिर ट्रेनर्स की निगरानी में ट्रेडमिल पर उन्हें भगाया जाता है और ये कुत्ते आराम से भागते रहते हैं। जब यहाँ ट्रेडमिल की बात निकल ही चुकी है तो मैं आपको बता दूं कि एक मशीन है जो वर्जिश के लिए इस्तेमाल होती है। मैं बुलडोजर की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशीन को किसने और क्यों बनाया था? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेडमिल को सर विलियम क्यूबिट ने सन 1818 में इजाद किया था, जिसे आजकल लोग बहुत शौक से इस्तेमाल करने लगे हैं। जिसे इस्तेमाल करने का अहम मकसद वजन को कम करना और खुद को हमेशा चाको चौबंद खूबसूरत भी बनाना होता है। बर्तानिया के सर विलियम ने इसे कैदियों को सजा देने के लिए बनवाया था। इसका असल मकसद कैदियों से भारी मशक्कत वाला काम लेना था। उन दिनों कैदी ट्रेडमिल पर कदम रखते ऊपर चढ़ते थे, जिसके सबब अनाज पिसता था और कुएं से पानी निकाला जाता था। बर्तानिया में 44 कैदियों से सख्त मशक्कत करवाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया गया था। मशहूर जमाना आयरिश मुसन्निफ ऑस्कर वाइल्ड को भी अपनी कैद के दौरान इस सख्त मशक्कत से गुजरना पड़ा था, जिसका इंकशाफ उन्होंने अपनी किताब में किया था। ताहम न्यूयॉर्क के बाहर मौजूद खदीम जेल बेलोपेनी में कैदियों को रोजाना 10 घंटे ट्रेडमिल्स पर गुजारने पड़ते थे और आम अफराद को उनका मजाक उड़ाने की इजाजत थी। अब तो हम वजीर आजम का मजाक भी नहीं उड़ा सकते, अगर उड़ाते भी हैं तो जेल की हवा ना खाना पड़ता है। जब वक्त गुजरता गया और कैदियों के साथ जालिमाना रवैया अख्तियार करते हुए उन्हें 12 घंटों तक इन मिल्स पर भगाया जाने लगा तो दुनिया भर में तहलका मच गया। जब यह खबर आम होने लगी तो कई ममालिक इस पर आवाज उठाने लगे। उसके बाद बिला आखिर ट्रेडमिल को कैदियों के लिए निहायत जालिमाना सजा करार दे दिया गया। बादअज़ा उन पर से इस सजा को हटा लिया गया। वक्त तेजी से गुजर रहा है। धीरे धीरे लोग ट्रेडमिल को भूलने लगे, जिसके जरिए कैदियों पर मजालिम ढाए जाते थे। जैसे जैसे अब लोग एक खास फूल को भूलने की कोशिश में हैं, उसी तरह उसको भी लोग भूल गए थे। फिर यूं हुआ कि जमाना तरक्की की जानिब गामजन रहा। साइंसदानों ने नई नई इजादात के जरिए दुनिया भर में बसने वाले अफराद को हैरत में डाल दिया। लोग जदीद सहूलतों को अपनाते हुए जिंदगी में आसानियां पैदा करने लगे और अपनी किस्मत को भी खतरे में डालने लगे। इंसान दिन ब दिन पुरआसाइश जिंदगी गुजारने का आदी और गैर मुतहर्रिक होता गया। जिस तरह आजकल हम वोट डालने भी नहीं जाते, और जाते भी हैं तो कहीं का वोट कहीं चला जाता है। इंसान की इसी लापरवाही के बाइस उसे निहायत ही संगीन किस्म के आरिज़े घेर रहे हैं। जदीद तर्ज जिंदगी को अपनाना उनके मोटापे का बाइस बन रहा था। माहिरीन ने बाज़ाब्ता तौर पर बयान दिया था कि वर्जिश ना सिर्फ मोटापे से नजात दिलाती है, बल्कि उम्र के हर हिस्से में यानी बुढ़ापे में भी इंसान को सेहतमंद रखती है। वर्जिश ही है जो कई इम्कानी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, साथ ही साथ उम्र रसीदगी के नुकसान को भी कम करती है। बाकायदा वर्जिश करने वाले लोग उम्र के हर हिस्से में अपने हम उम्रों से बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। ये वो जमाना था जब लोग एसी में सोना पसंद करने लगे थे।
ऐसे में अक्सर लोग वर्जिश के नाम से बुरी तरह घबराने लगे थे। बाज लोग समझते थे कि यह निहायत मुश्किल और गैर दिलचस्प काम होने के साथ साथ ये एक मुशक्क़त भी है। ऐसे अफराद को अगर आप कसरत करने की दावत दें तो तरह तरह के बहाने करते हुए आपसे दूर भागने लगते हैं। दुनिया भर के माहिरीन एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहे। लोगों में यह पैगाम जारी किया कि वर्जिश हाँपने और पसीना बहाने का नाम नहीं, इसे आप दिलचस्प भी बना सकते हैं। हल्की फुल्की वर्जिश आपकी पसंद की हो सकती है, जिनका इंतखाब आप खुद कर सकते हैं। बतौर तफरीह आप कोई खेल को रोजाना खेल भी सकते हैं, बुलडोजर नहीं। दरअसल वर्जिश करने से जिस्म में एक खास तरह की लचक पैदा हो सकती है, जो इंसान को ज्यादा फाल, मुतहर्रिक और ताकतवर बनाती है। न सिर्फ बल्कि दौरान खून में भी हम आहंगी पैदा होती है, जो जिस्मानी फरहत और खुशमिजाजी का बाइस होती है। सन 1910 में बाज़ाब्ता तौर पर मगरबी ममालिक में वर्जिश के लिए शऊर बेदारी मुहिम शुरू की गई, जिसमें पैदल चलने को सबसे आसान और फितरी वर्जिश करार दिया गया, जिसे बचपन से बुढ़ापे तक हर शख्स आसानी से कर सकता है। लेकिन बतौर आदत इसे इख्तियार करना जिस्मानी बेहतरी के लिए जरूरी है। ये दौरान खून, क़ल्ब, फेफड़ों और उज़लात के लिए बेहद मुफीद और जरूरी है। चलते हुए सर बुलंद, सीना आगे को निकला हुआ और गर्दन सीधी होनी चाहिए। ताहम अंग्रेजों ने माहिरीन के इन मशवरों को अपनाया और पैदल चलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद लोगों की मसरूफियात और बढ़ी। पैदल चलने वाले बिस्तरों में पड़े दस्तयाब होने लगे। तो उसके बाद सन 1913 में पहली मर्तबा एक माहिर ने फिर से ट्रेडमिल बाहर निकाला और दुनिया से मुखातिब होकर कहा कि अब आप अपना वक्त बचा सकते हैं। कभी भी उठो, घर में ट्रेडमिल पर भागो, आपका वक्त भी बचेगा और सेहत भी रहेगी। ताहम जिस ट्रेडमिल को कैदियों पर जुल्म ढाने के लिए बनाया गया था, 1913 में पहली मर्तबा आम अफराद के इस्तेमाल में इसे लाया गया। जिस चीज की शुरुआत लोगों पर तशद्दुद करने से हुई थी, आज लोग उसे अपनी ख्वाहिश से खरीद कर घर लाने लगे हैं। इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। हिंदुस्तान के हर 10 घरों का जायजा लें तो हमें 3-4 घरों में ट्रेडमिल दिखाई देगी। लेकिन हैदराबादी नौजवान आज भी 3 बजे से पहर तक बिस्तरों में दबे रहते हैं। वालिदैन जब उन्हें कोई चीज खरीदने के लिए उठाते हैं तो वो बदतमीज से कहते हैं, जाओ भाई, मैंने लाता। ऐसे अफराद कहां से वर्जिश कर पाएंगे जो घर का सौदा सल्फ लाने से कतराते हैं। ताहम ट्रेडमिल अब आपको हर जगह जहां स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, उस दुकान पर दस्तयाब हो जाती है। आप भी इसे खरीद कर अपनी सेहत बना सकते हैं। अब बुलडोजर चाहे शाहीन बाग पहुंचे या कहीं और, इसका काम सिर्फ सलीके से बनाए गए इमारतों को मिस्मार करना है। लेकिन अगर इसे तख्लीकी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये बुलडोजर बड़ी काम की चीज है और इसका इस्तेमाल तामीर और तरक्की के लिए हो सकता है, न कि गरीबों के घरों को ढह देने के लिए। ताहम अब बुलडोजर का खेल छोड़कर आप सभी ट्रेडमिल का खेल शुरू कीजिए, जिससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी और सियासी बुलडोजर का रुख मोड़ने की आप में सलाहियत भी आ जाएगी। तभी हम कह सकते हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल ट्रेडमिल से बहुत अच्छा है। वरना हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि खाक मेहनत हो सके हो ना जब हाथों में जोर, खाक मेहनत हो सके हो ना जब हाथों में जोर, तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश की आदत चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब और शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।